Hello? Hello? Sweet song. May His peace, love, mercy, grace once again with you all. Let's worship the Lord. Light of the world, you stepped on into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. King of all days, oh highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, our for the love's sake became you poor. Oh Lord, my God, my Savior, Lord, I worship you, I praise you, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down. Here I am, my God. You altogether lovely, altogether wonderful to me. Oh Lord, my God, my Savior, Lord, I bless your name and praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh Lord, my God, my Savior, my Lord, God, my Lord, I am much is cast
to see my sins upon that cross. I never know how much it hurts to see my sins upon that cross. Here I am to worship, here I am to say, bow down, here I am to say that you are my God. You all together worthy, all together lovely, all together wonderful to me. Oh Lord, my God, my Savior, Lord, I worship you, Lord, I worship you, Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Thank you. You are our most high dwelling place. Bless us. तो अभी हमारे साथ मुस्कान है, हम मुस्कान के साथ मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे। यूनिट का मुस्कान है। मुस्कान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मसीहत में आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। चले आप वर्शिप करें। जी। नियता जिन्ना दिया चंगिया रब ओ नानू मिलदा, नियता जिन्ना दिया चंगिया रब ओ नानू मिलदा, दिल तो दुआ जिन्ना मंगिया रब ओ नानू मिलदा, और रब ओ नानू मिलदा, कई ते कहंदे रब मंदिरां च मिलदा, कई ते कहंदे रब मंदिरां च मिलदा, मंदिरां च बेड़ा बकरियां रब ओ नानू मिलदा, मंदिरां च दीवे बत्तियां रब ओ नानू मिलदा, ओ रब ओ नानू मिलदा, नियता जिन्ना दियां चंगियां रब ओ नानू मिलदा, कई ते कहंदे रब जंगलां च मिलदा, कई ते कहंदे रब जंगलां च मिलदा, जंगलां च बेड़ा बकरियां रब ओ नानू मिलदा, जंगलां च बेड़ा बकरियां रब ओ नानू मिलदा, ओ रब ओ नानू मिलदा, ओ रब सानू ए मिलदा, ओ रब सानू ए मिलदा, मेरा यसू जलाली है, मेरा यसू जलाली है, बाकी सारे कब्रां ने ओदी कब्र को खाली है, बाकी सारे कब्रां ने ओदी कब्र को खाली है, चन्न चढ़ के लेंदा है, चन्न चढ़ के लेंदा है, यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहंदा है, यसू कदों आवेगा दिल तरसदा रहंदा है, रोटी उते पौना है, रोटी उते पौना है, सारे अनवां विचों यसू नाम इक सोना है, सारे अनवां विचों यसू नाम इक सोना है, तू दित्तियां तौफीकां ने, तू दित्तियां तौफीकां ने, किन्नू लभदे मैनू यसू दी उड़ीकां ने, लोकी हर किन्नू लभदे मैनू यसू दी उड़ीकां ने, चन्न चढ़ के लेंदा है,
ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਦਿਲ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਦਿਲ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਏ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਏ ਸੱਤ ਪੱਤਰ ਮਸੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਪੱਤਰ ਮਸੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਲਾਲੀ ਏ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਲਾਲੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਏ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. In fact, Jesus' name is beautiful. We'll continue the worship and we'll sing a song. You were the word at beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, not revealed in archives. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You did not want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, indeed, Lord Jesus Christ, your name is so powerful, so beautiful. There's no duplicate. You are the only one. And there's no one like you. And there's no beside you. There's no beside you, none beside you. You are the greater. Your love is so great towards your children's love. We bless your name, praise your name. We continue to worship the Lord. We will sing the song, Blessed Lord of my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship his holy name. The sun comes up, it's a new day dawning.
It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship his holy name. Thank you, Heavenly Father. Thank you. Thank you for opening our hearts, mind, soul, and filling us with your presence, O Lord. Thank you for this beautiful day. And once again, Father, we praise and worship and glorify your name. We enter into your courts with the thanksgiving and into your gates with the thanksgiving and your courts with the praise, O Lord. Come and take a charge. Your church is present. Your people are present. Say, Lord, open our heart, mind, soul, brain. Pour your spirit onto us, breathe onto you. May your Holy Spirit be with us all. Father, many people have not joined us, our participants. They're out there. If there are any hurdles or any problem or any issue, we rebuking and announcing in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We're praying for your blessing be upon everybody's Lord. We ask that you bless their hearts and let them come to you, come before your throne of grace. Thank you for this Holy Sanctuary Ministry. We pray for blessing for Holy Sanctuary Ministry and the founder of the Holy Sanctuary Ministries, Lord. And Father, we blessing be upon her and upon us all, Lord. And let this meeting go smooth and effective in your favors, Lord, in your presence, Lord. For our fear, for our favor, and for our well-being, Lord. That whatever you have in your heart, we will be speaking today, and you will be speaking through your servant, Lord. We bless and praise and glorify your name, Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. अभी हम मुस्कान से कहेंगे कि वो कोई कोर्स गाएं, फिर उसके बाद हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का कलाम ये है कि मैं उसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में करूंगी। तो आज का कलाम ये है कि खुदावंद जो बिलीवर हैं उनको क्यों सफर करना पड़ता है जमीन पे, और उनके लिए सफरिंग खुदावंद क्यों अलाउ करता है। तो आज का कलाम मैं बयान करूंगी, छोटा सा कलाम है, मैं इसको बयान करूंगी। तो आइए मुस्कान के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, फिर हमारे साथ पास्टर रशीद हैं, वो कलाम के लिए दुआ करेंगे, फिर हम खुदावंद के कलाम की खिदमत करेंगे। जी, प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंद के हुजूर वाई कोर्स गाएंगे और खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा दुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जब आती है बंधन सारे टूटते गिरते जाते हैं। रुआ
की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिरेगा, रूह रुआ रुआ आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे साथ पास्टर रशीद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आवाज आ रही है? हालेलुया। हाँ जी, आ रही। खुदा कदूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। आसमानी खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, तमाम बरकतों के लिए, तमाम बख्शिशों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बिलखसूस आसमानी खुदा, आज शाम तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी खुदा, अपनी बेटी के लिए, आसमानी खुदा, जिसके वसीला से आज तो कलाम करने को है, नुसरत के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, तो अपनी बेटी के लब बन जाना, इसके होंठ बन जाना। आसमानी खुदा, आज शाम, आज रात जब तेरी बेटी कलाम करे, तो आसमानी खुदा, तेरे कलाम के वसीला से आज शाम, आज रात बहुत सारी जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। क्योंकि खुदावंद खुदा, तो किसी भी जान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा तो चाहता है कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आसमानी खुदा, खुदा, आज का कलाम जो जान तेरे कलाम से आज सैर और रसूदा होती है, यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा, उनकी हालतें और तकदीरें यीशु नाम से तब्दील हो जाए। आसमानी खुदा, आज का कलाम तब्दीली का कलाम हो, आज का कलाम सुलह का कलाम हो, आज का कलाम रिहाई का कलाम हो, आज का कलाम चंगाई का कलाम हो, आज का कलाम निजात का कलाम हो, आज का कलाम हमेशा की जिंदगी के लिए हो। आसमानी खुदा, अपनी बेटी पर अपने कलाम के गहरे भेदों को, मुकाशफात को यीशु नाम से जारी उसारी कर। और आसमानी खुदा, खुदा, आज शाम तेरी बेटी कलाम करे तो तेरा आसमान यीशु नाम से खुल जाए। और आसमानी खुदा, खुदा, जब तक तेरी बेटी बोलती रहे, तेरा पाक रूह उसकी रहनुमाई करे। आसमानी खुदा, तो अपनी बेटी को बबरकत लफ्ज, रुल्क़दस की तहरीक, मिठास यीशु नाम से जारी उसारी कर। आसमानी खुदा, तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटा। आसमानी खुदा, आज शाम, आज रात तेरा कलाम 100 गुना फैलाने वाला। आसमानी खुदा, खुदा, एक बार फिर से तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जितनी जाने, जितनी जिंदगियां तेरे कलाम को सुने, आसमानी खुदा, उनकी जिंदगियों में कसरत से काम कर। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम इससे पहले कि मैं खुदावंद के कलाम बयान करूं, हम खुदावंद के कलाम को तालियों में वेलकम करते हैं। आइए हम खुदावंद के कलाम के लिए तालियां बजाएं, जो जिंदा है और हमारे दरमियान है और हमारी जिंदगी के लिए लिखा गया है और हमारे लिए रोशनी है और हमारी वेलबीइंग के लिए लिखा गया है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम अपना कलमा बयान किया, हमें लिए अपना कलमा भेजा अपने लोगों के जरिए से। तो आज है तो ये है कि सब कहते क्रिश्चियंस या खुदावन के जो बिलीवर्स हैं वो सफरिंग क्यों आप ऐसा करें कि इसको रिकॉर्डिंग पे दोबारा लगाएं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मैसेज को अलग से क्या करें। खुदावन
आइए हम काम में से पढ़ेंगे आज कि बिलीवर्स को जमीन पर सफर क्यों करना पड़ता है, सफरिंग क्या खुदावन सफरिंग को क्यों अलाउ करता है, और सफरिंग जो है वो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खुदावन जमीन पे जब आए थे तो उन्होंने भी सफर किया था, लेकिन वो हलीमी से आए और हलीमी से उन्होंने हर चीज को कबूल किया खुदावन की पाक मर्जी से, क्योंकि खुदावन की मर्जी जो हमारी जिंदगी में है वो पूरी हो सके। तो वो मतलब हमारे लिए निजात का एक मंसूबा था, लेकिन जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हमें भी उसी तरह सफर करना पड़ता है। तो हम मतलब जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम एक किस्म की अपनी सलीब, जैसे यीशु सलीब लेकर राह कलवरी पर चला था, फिर हमारी सलीब भी इसी तरह राह कलवरी पर चलती है। तो हमारी जिंदगी स्लोली जब हम अपनी सलीब अपने ऊपर रखते हैं तो यीशु के पीछे चलते हैं, तो उसमें कितनी दफा मतलब बहुत सारी चीजें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे कि यीशु मसीह ने हमें बताया कि जमीन जो कि ऑलरेडी हमारे लिए खुदावन जब फाज हुआ कर्ज हो चुकी है। तो मैं कलाम पाक से पढ़ूंगी जेनेसिस उसका चैप्टर 3 है वर्स 17 to 18. So to my English viewer, I will say like why God allows the suffering to the believer, why believer has to suffer onto the earth, why believer is like into the suffering, why God allows the suffering. Yet he suffered himself because he showed us, you know, you can get the crown of glory. You cannot get the eternal life unless you go. And you have first thing, you know, our king came as a humble, as a poor, and then he suffered. And after suffering, he sat at the right hand of the Father, and he's living for us. And so do for the people, his believer, why they have to suffer, because we will look into that, why we have to suffer. I might not speak too much, but I will speak a little bit today. So when we talk about the suffering of the believer, in the it's called a theological suffering. So when we call the theological suffering, it's the suffering of the believer, whether they are the ancient Israel or whether they are the follower of Christ. They all have to suffer. तो सफरिंग के लिए, क्योंकि ये सफरिंग जो है वो हमारी जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है, तो हम पढ़ेंगे कि सफरिंग क्यों होती है हमारी। सबसे पहले तो हम बिगनिंग में जाते हैं कि खुदावन ने मतलब जेनेसिस उसका 3 बाब 70 to 18 का, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of when I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you, and the pain you shall eat of it all days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. The word of the God. Thanks be to God. कलाम में लिखा है कि जेनेसिस उसकी 3 से 17 आयत में वो कहता है कि क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मतलब तूने मेरी आवाज को ना सुना, तूने मुझे ओबे ना किया, तूने अपनी वाइफ की आवाज को सुना और तुमने उस दरख्त से खाया जिसको मैंने तुझे मना किया था ना खाना, लेकिन अब तूने खा लिया तो तुम्हारी वजह से अब जो जमीन है वो कर्स हुई. I command you, you shall eat it not. Curse is the ground because of you. क्योंकि तुम्हारी वजह से, आदम की वजह से, he said, आदम की वजह से कर्स, जमीन जो है कर्स हुई. And in pain you shall eat, or in all days of your life. कि तू पेन और सफरिंग में ही खाएगा और अपनी जिंदगी के सारे दिन तू इस जमीन के पौधों में से उसको मतलब उसका बीज बोएगा और सफरिंग करेगा और उसमें तू खाएगा. तो हम इसको इस तरह सुनते हैं, इस तरह कहते हैं कि खुदावन जब इसको मतलब हमारे जो लोगों की जो सफरिंग है वो इसलिए है कि we sometimes we don't obey the God, we don't hear his voice, and when we don't hear and we don't obey then we suffer. तो वो कहता है कि even in the world, क्योंकि शैतान जो है, क्योंकि जमीन पहले ही जमीन तो आदम की वजह से कर्स होगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो सैतान था वो भी मतलब शैतान जो था वो भी जमीन पर था.
उसको भी और उसके जितने एंजल्स थे उनको भी जमीन पे भेज दिया गया था, उनको भी हेवन से निकाल दिया गया था। तो वो भी अपनी टेरिटरी और वो भी अपनी किंगडम जो है ना वो उसने जमीन पर कायम कर ली, ताकि वो खुदावन से, उसका प्लान था कि वो अपनी किंगडम को खुदावन से बड़ी किंगडम बनाएगा। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि whether they believe the suffering is imminent for the believer of God, whether ancient Israel or follower of the Christ, has been like the, in the Bible history and will continue for the people of God. ये खुदावन के लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि खुदावन को इसमें प्लेजर्स मिलता है, खुदावन को मतलब ये खुदावन के लोगों के लिए कंटिन्यू होगी, क्योंकि they leave, that's the heaven, and they choose to live onto the earth. That is why they have to live, because God wants them to not to eat the fruit and obey him, but yet they did not obey him and they went with their own goodwill. That is why they choose to come. And then when they come to Father, you know, the Father is always allow them to suffer because this is our own goodwill. Our believer have to go through the suffering on the earth because earth was cursed, which is, I already said, the earth is already cursed. And मुस्कान, अगर नुसरत बाजी नहीं तो फिर दुआ करो। आप नुसरत बाजी नहीं है, आप दुआ करो जब तक। चलिए ठीक है, ओके। क्या हुआ, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही मेरी, आपकी अब आ रही आवाज नहीं आवाज, आपकी आवाज अब आ रही। अच्छा, तो हम लोग कह रहे थे कि हमने आप लोगों ने मेरा बिगनिंग से सुना है जब मैंने वर्स पढ़ी थी? नहीं सुना? चले हम इसको दोबारा करते हैं। हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं और हम इसको दोबारा शुरू करते हैं कि खुदावंद अपने बिलीवर्स को सफर करने क्यों देता है, हमारे लिए सफरिंग क्यों मतलब खुदावंद क्यों अलाउ करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदावंद, बहुत सारे लोगों का ये इमेज है कि खुदावंद जब खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं तो हमें सारी ब्लेसिंग मिलती है और मतलब हमें सफरिंग नहीं करती, हम पीस में रहते हैं। डेफिनेटली खुदावंद हमें पीस देता है, लेकिन जमीन पे रहते हुए हमें उसके लिए सफर करना मतलब अपनी ग्लोरी का ताज लेने के लिए हमें सफर करना पड़ता है।
ये खुदावंद का प्लान है कि मतलब कि वो अपने बिलीवर्स को अपने पास रखना चाहता है। मैं इसको इस तरह पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी जो मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैं इसको उर्दू में बयान करूंगी कि जब हम सफरिंग के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द बिलीवर्स ऑफ द गॉड, वेदर द एंशिएंट इजराइल और अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। कि जब हम सफरिंग के बारे में बात करते हैं, बिलीवर की सफरिंग के बारे में, तो उस बिलीवर की सफरिंग में आप देखें कि वो एंशिएंट इजराइल भी जितने उन्हों को भी सफर करना पड़ा, और जो अब खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं उनको भी, जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर है, जो ट्रू फॉलोअर है, उनको सफरिंग करनी पड़ती है। जो spiritual and जो walk in the spirit, they suffered because God, God did not want us to suffer, but He allowed us to suffer. It has been like the Bible in the history, and the will continue for the people of God to suffer onto the earth. So हम सबको इस अपने ज़हन में रख लेना चाहिए कि जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हम एक किस्म की, हम यीशु मसीह की सलीब को कबूल करते हैं कि वो हमें कहता है कि अपनी सलीब उठाओ। जब हम अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चलते हैं तो हमें उसका मंजर जाहिर याद रखना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने सलीब उठाई तो उसके सर पे कांटों का ताज भी था, उसको कोड़े भी लगे थे, उसके मुंह पे थूका भी गया था, लेकिन वो फिर भी हम्बल था, वो फिर भी दुआ कर रहा था, वो फिर भी उनको फॉरगिव कर रहा था। तो खुदावन के बिलीवर जो है, खुदावन यीशु मसीह के बिलीवर जो है, उनको भी ऐसे ही सफर करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे एंशिएंट फादर जो थे कि इस्राएल थे, वो कितनी गुलामी में गए, कितनी मतलब गुलामी में कितनी बुरी जिंदगी, कितनी उनको मतलब ऑप्रेशन में उनको रखा जाता था, कितने उनको दुख सहने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदावन को पे बिलीव करते थे, वो किसी और के सामने नहीं झुकते थे। इसीलिए तो इसका यह है कि मैं वर्स पढ़ूंगी, जेनेसिस 3:17-18। Because you have listened to voice, why खुदा है, खुदा जो है ना वो हमें सफर, इसका जवाब हमारे पास बिगिनिंग से है कि Genesis 3:17-18 खुदावन कहता है कि because you have listened to the voice of your wife and you have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In a pain you shall eat of it in all days of your life. Thorns and thistle it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. इसके कहने का मतलब है कि God, in the beginning, God told the mankind, told Adam not to eat the fruit, just obey him, just to listen to him. But he disobeyed the God. He did not listen to him. He listened to his voice of his wife, and he eaten the fruit. And now God is saying that since you have eaten the fruit and you have not listened to me, because of your disobedience, the ground is cursed now. The earth become cursed now. So all your life you will suffer, and all your life तो इस जमीन में खेती बाड़ी करेगा और ये जो दरख्तों के फ्रूट हैं उनमें से तू खाएगा और उनमें से मतलब तू अपनी जिंदगी को बसर करेगा। और दूसरी बात ये है कि उससे पहले जबकि खुदावन मतलब हेवन में जो फाइट हुई, आप सब जानते हैं कि उससे पहले आदम ने डिसोबे किया, उससे पहले शैतान को आसमान से नीचे गिराया जा चुका था। तो शैतान और उसके फरिश्ते जो उसके फॉलोअर थे उनको खुदावन ने जमीन पर गिरा दिया। Even when the worldly king Satan tries to make it harder for the believer. तो अब आप समझ सकते हैं कि अर्थ को उसके खाने से, फ्रूट खाने से, डिसोबे करने से खुदावन ने अर्थ को कर्स कर दिया। The curse is the ground because you disobeyed me. Okay, only this thing, you disobeyed me, and yet there was another conversation between God and Adam and Eve too. It's not showing us, but it is there. There was a conversation between them and the answers to the Father, Heavenly Father. And then the earth was a territory of the Satan. Now the earth is become the world. The world become world. The second name of the world is the Satan. जब हम दुनिया की बात करते हैं और आसमान की बात करते हैं तो हम दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया का दूसरा नाम शैतान है। दुनिया का जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं उसका दूसरा नाम शैतान है।
वो डेवल है, उसके एंजल है, उसके स्टूवर्ड है जो कि जमीन पर है, वो अपना तो जो थ्रोन है उसका ख्वाब है कि वो अपना थ्रोन खुदावंद के थ्रोन से अब बाप बनाएंगे। वो जो झूठों का सरदार है, वो जो डिसीटफुल है, धोखेबाज है, दगाबाज है, चीटर है, डिसीवर है, हिपोक्रेट है, वो जो है ना वो नहीं चाहता कि जो खुदावंद के बिलीवर है खुदावंद अपनी बादशाही को जमीन पर कायम कर सके। इसलिए एक तो खुदावंद की तरफ से इंसान का टेस्ट होता है, और दूसरा ये कि जब हम खुदावंद की तरफ नहीं जाते तो हम सफर करते हैं, और सफरिंग जो है ना इमिनेंट है, ये इमिनेंट है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें ये दिखाया जब वो सलीब उठाई, तो ये दिखाया कि देखो अगर मैं खुदा होके जमीन पर आके सफर कर रहा हूँ तो तुम लोग भी इसी तरह सफर करके क्राउन ऑफ ग्लोरी जो है ना वो हासिल करोगे। लेकिन खुदावंद क्यों अलाउ करता है कि evil to persist in the world? क्योंकि खुदावंद दोनों चीजों को अपने लिए यूज करता है, मतलब evil को भी, और कंट्रोल खुदावंद का है, हर चीज पे खुदावंद का कंट्रोल है, हर चीज को खुदावंद ने फ्री विल दी हुई है, हर बंदे को फ्री विल है, वो अपनी फ्री विल से लीव करे। लेकिन ये है कि खुदावंद ये भी बताता है कि तुम्हें मैंने आजादी दी है, तुम फ्री विल से लिव करो, लेकिन ये है कि तुम्हारी जो साल्वेशन की तुम्हारा जो साल्वेशन है वो मेरे हाथ में, तुम्हारी डोर जो है ना वो मेरे हाथ में, तुम जहां भी चले जाओ, जैसे भी रहो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब दांत निकाल रहा होता है, चलना सीख रहा होता है, तो वो जब चलता है तो माँ उसको छोड़ देती है, तो वो इधर उधर जाता है, लेकिन माँ को पता होता है कि भी ये अभी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, माँ को पता होता है कि ये बच्चा जो है ना ये अपने आप डेंजर, इसके लिए डेंजर्स भी हो सकता है, ये गिर सकता है, इसको चोट लग सकती है। इसी तरह खुदावंद भी हमारे साथ इसी तरह करता है कि वो हमें मतलब छोड़ देता है खुला, ताकि हम गिरे उठे स्ट्रांग हो, गिरे उठे स्ट्रांग हो। क्योंकि इसी तरह बच्चे की डेवलपमेंट होती है, वो उठता है चलता है गिरता है, उठता है चलता है गिरता है। इसी तरह स्पिरिचुअली और फेथ में हम ग्रो होते हैं। तो अब आगे मैंने इस पे लिखा है कि what God purpose for allowing evil to persist in the world. First thing first, I said God has a control over everything. His purpose and plans are always supreme and great for His pleasures. क्योंकि खुदावंद जो है वो हर चीज का बनाने वाला है, और हर चीज का कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। व्हील जो है ना हमारी जिंदगी का, ये पूरी यूनिवर्स का व्हील जो है ना वो खुदावंद के हाथ में है। खुदावंद ने सिर्फ एक अल्फाज कहना है जो उसके पावरफुल अल्फाज है, जो जिस तरह उसने अपने पावरफुल अल्फाज यूज करके जमीन और आसमान बनाए। यीशु मसीह जमीन पे जब था तो वो भी सिर्फ बोलता ही था तो things takes place, miracle happen, things takes place, even the air, even the wind listens to me. तो खुदावंद जो है, he has the wheel in his hand, so he likes to be in the control for everything. He does not give us freedom so we can do things by ourselves. He allow us and he gives us, he tell us, he reveal us, and then we do things, and then we get excited through him by seeking him. So God is in a control for everything, and he's always his plans, जो कि उसके plans हैं वो हमेशा supreme plans होते हैं। उसके प्लान जो होते हैं वो पूरी ह्यूमन बीइंग के लिए होते हैं। उसके प्लान जो ना all mankind के लिए, whether they believe on him, whether they not. अब जो सूरज है, अब सूरज देखे, सूरज जो है ना वो नेकों और बदों पे दोनों पे होता है। अब खुदावंद ये तो नहीं कहता कि ये बाधा इसने बदकारा, ये मेरे साथ नहीं चलता, मुझे नहीं मानता, तो मैं उसको अपने सूरज की रोशनी नहीं दूंगा। नहीं, खुदावंद के प्लान जो होते हैं ना वो सबके लिए होते हैं। खुदावंद सबको ढील देता है, लेकिन ये है कि उस ढील में खुदावंद जो है ना देखता है कि ठीक है, इनमें कितनी ताकत है कि ये अपने आप निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। किसी भी आजमाइश में गिरेंगे तो हम अपने आप कभी भी नहीं निकल सकते जब तक कि खुदावंद हमारी मदद ना करे। इसलिए वो हमें टेस्ट करता रहता है और वो हमें आजमाता है, क्योंकि वो चाहता है कि इवल एग्जिस्ट करे, क्योंकि वो हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी फॉर्मिंग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए वो इवल को भी अलाउ करता है। तो वो कहता है कि the Lord has made everything in his purpose, even the wicked, जैसे प्रोवर्ब्स में लिखा है कि
The scriptures say in Proverbs 16:4, जैसे कि अमाल की किताब उसके 16 बाब 4 आयत में लिखा है, इसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी फिर मैं इसको उर्दू में करूंगी. The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. God likes to be in control. वो कहता है कि खुदावन ने हर चीज किसी मकसद के लिए बनाई है. Even के wicked जो है उसको भी, wicked days को भी trouble के लिए उसने बनाया हुआ है. God likes to be in control. He is the beginning and the end of everything. The ultimate purpose is to keep us all in His presence all the time. खुदावन का ultimate goal जो है कि वो क्यों हम मतलब हमें मतलब क्योंकि वही start करता है और वही finish करता है. He is the maker, he is the finisher, he is the beginner, he is the end. He makes everything and he will end everything. Everything start within his hand and everything finished with his hand. So तो खुदावन जो है कि वो मतलब कि वो कहता है कि and for his कहता है कि his beginning and ultimate purpose is to keep. Why? क्योंकि खुदावन हर चीज अपने हाथ में रखना चाहता है. क्योंकि he wants us to obey him, he wants us to come to him. As parents, our earthly parents, they want their children to come to them, listen to their parents. And you already know, being a father, he knows where their shelter is. He knows. वो कहता है ना जानते ना ने वापस से मेरे को ही आना ना, हर चीज से मेरे हाथ चले. खुदावन का ये एक अपना मंसूबा है जो कि evil को persist होने देता है जमीन पे. And for his incentive to seek him, worship him, ask him, and obey him. Also, since he is the stronghold, the rock of salvation, he allows evil to persist. So we return to him all the time. खुदावन evil को इसीलिए क्योंकि खुदावन चाहता है कि जब खुदावन में हम आ जाते हैं तो evil हमसे भाग जाता है. ये भी एक मैग्नेटिक अटैचमेंट है हमारी खुदावन के साथ कि हम खुदावन से निकले और खुदावन में ही जाके जुड़ते हैं. तो जब खुदावन मतलब हमारा उसके साथ मैग्नेटिकली रिलेशन है तो हम तो एक मैग्नेट है उसके जो मतलब कि जब हम अपने मैग्नेटिक जो फोर्स है जो हमारा सोर्स है उससे दूर हो जाते हैं तो हम यूजलेस होते हैं. लेकिन जब वापस जाके उसके साथ अटैच होते हैं तो फिर हम वर्केबल होते हैं. यही खुदावन का मतलब है कि हम उसके मतलब वो हमारी जिंदगी में ईवल को परसिस्ट करने देता है, ईवल को अलाउ करता है कि वो हमारे ऊपर थोड़ी सफरिंग आए. वी आर सो आगे जो सबसे बड़ा जुमला मैंने लिखा है कि व्हाई आल्सो सिंस ही इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब है कि वही हमारी राख है, वही हमारी फोर्ट्रेस है. द रॉक ऑफ सैल्वेशन, हमारी सेफ्टी, हमारा सेवियर, हमारी सेफ्टी खुदावंद है. तो उसके बगैर हमें नजात, किसी चीज से भी नजात नहीं मिल सकती जब तक कि हम उसकी तरफ वापस नहीं जाते. He allows evil to persist, so we return to him, which is his very deep desire. खुदावंद की जो deep desire है. एक बाप की deep desire क्या हो सकती है कि उसका बच्चा उसकी प्रोटेक्शन में रहे. एक बाप की डीप डिजायर क्या हो सकती है कि उसका बच्चा उसकी जिंदगी में खुशहाली हो. एक बाप की डिजायर क्या होती है कि उसका बच्चा एक मतलब अच्छी जिंदगी गुजारे. सो जो खुदावन की जो डीप डिजायर है कि वो चाहता है कि हम बड़े पले फूले और तरक्की करें, लेकिन ये है कि वो चाहता है कि हम उसको सीख करें. फिर वो कहता है कि बिकॉज व्हाई, क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि खुदावन के दिल में कौन रहता है. हमारे अलावा खुदावन के दिल में कोई नहीं रहता. यही वजह है कि खुदावन जो है ना वो हमें गिरने देता है, हमारे ऊपर कुछ थोड़ी से ट्रायल आने देता है सफरिंग के, क्योंकि उसको पता है कि जब तक ये गिरेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, ये ग्रो नहीं होंगे. तो खुदावन हमारी जिंदगी में इवल को परसिस्ट अलाउ करता है, परसिस्ट होने देता है. क्यों? मैंने पहले कहा है कि वो हमें छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता है. उसके हाथ में हम छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके अभी दांत भी नहीं निकले होते. ठीक है, जब हम मतलब दूध पीते बच्चे की तरह हमें वो रखता है. वो इतना टेंडर हमें रखता है, इतना सेफ्टी रखता है, इतना वो चाहता है कि हमें
हमारे पाँव ना गिरे, हम गिरे इसीलिए उसने अपने फरिश्ते रखे हैं। सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उसके दिल में हम ही हर वक्त रहते हैं, तो हमारी हिफाजत के लिए उसने अपने फरिश्ते रखे हुए हैं। तो इसीलिए खुदावन जो है ना वो चाहता है कि हम मतलब उसके दिल में रहें, क्योंकि जब हम उसके दिल से निकल जाएंगे तो फिर हम आग में डाले जाते हैं, फिर हम शैतान के पैरोकार बन जाते हैं, फिर हम शैतान की आर्मी के सोल्जर हो जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद इतना हमें प्यार करता है कि वो चाहता है कि बार बार वो एक मदर की तरह, उसका प्यार एक माँ की तरह है कि वो मतलब उसने माँ को भी एक अच्छा दर्जा, माँ भी लोग कई रिलीजियस जो है ना माँ को बहुत मतलब माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, माँ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि माँ का हार्ट जो है खुदावन का हार्ट भी मतलब खुदावन उसके दिल में रहता है, और वो अपने बच्चों को बढ़ता फूलना माँ बाप देखते हैं, माँ सबसे ज्यादा होती है। तो खुदावन भी हमारे लिए फादर भी है और एक मदर भी है, वो दोनों रोल हमारे लिए अदा करता है। वी लर्न टू वॉक फॉल स्ट्रगल। तो वो कहता है कि जब हम टॉडलर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे जब गिरते हैं तो वो सीढ़ियों से गिर जाते, हमें होता है कि उनकी सर पे चोट ना लग जाए, वो कुर्सी के नीचे जा रहे हैं, उनको पता नहीं होता, वो अनअवेयर होते हैं, वो कोई चीज उठा के खा लेते हैं, तो हम समझते हैं कि इनके हाथ से जो कोई ऐसी शार्प चीज ना आ जाए जिनसे इनको डेंजर हो, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं। इसी तरह खुदा उनको पता है कि वो हमें टॉडलर की तरह मतलब ट्रीट करता है, तो उनको पता है कि हम जमीन पे अनअवेयर है, हमें हमारी सराउंडिंग का हमें कुछ पता नहीं है, हम नहीं जानते, हमारे लिए हर जगह खतरा है, हमारे लिए हर जगह टेस्ट है। इसलिए खुदावन जो है ना वो हमारे मतलब करता है कि हम गिरे और उठे और समझे, लेकिन उसी को सीख करे ताकि वो हमें बचा कर रखे। He allows evils to persist so we may fall, resist and fight with evil in order to become. अब दूसरा ये है कि अब जाहिर है खुदावन का एक अपोनेंट जो है ना वो खुदावन का निकल आया, शैतान जो है वो खुदावन गॉड वर्सेस सैटन। तो अब वो जो है ना कि वो खुदावन के बराबर अपने आप को रखता है, वो समझता है, लेकिन हालांकि वो एक फरिश्ता था, वो भी खुदावन का क्रिएट किया हुआ था, लेकिन खुदावन को ये नहीं पता था कि वो इतना उसका दिल इतना ब्लैक है। खुदावन को ये नहीं, खुदावन ने उसके दिल में जो उसके दिल की ख्वाहिश सुनी तो खुदावन ने उसको वहां से निकाल दिया। अब खुदावन को अपने मतलब अपने अपोजिट एक अपोनेंट नजर आ गया, और वो हमेशा उसकी उसकी पकड़ से हमें दूर रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये है कि खुदावन एक राइचस खुदावन है, खुदावन ने उसको भी क्रिएट किया था, उसके पास भी इतनी पावर थी, उसके अंडर पूरे हेवनली होस्ट चलते थे। अब खुदावन ने मतलब है तो वो खुदावन का क्रिएटर है ना, वो खुदावन मतलब खुदावन ने ही उसको बनाया, लेकिन खुदावन ने जब उसके दिल की हालत को जाना तो खुदावन उसको गिरा दी, मैंने पहले भी कहा। लेकिन ये है कि खुदावन एक रासबाज खुदावन है, एक जस्टिस खुदावन है, एक लविंग काइंड मसाया खुदावन है। वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेगा, वो शैतान को मतलब शैतान के ही उसमें ला के उसको मारेगा, क्योंकि खुदावंद अपने ऊपर ब्लेम उसको खत्म करने का ब्लेम नहीं लेगा। लेकिन ये है कि जबकि वो उसका फरिश्ता है, उसकी काउंसिल का मेंबर है, तो वो मतलब ठीक है जाता है हेवन में, वो जाता है खुदावंद के पास, तो वहां जाके वो क्या करता है, वो हमारे खिलाफ हमें ही एक्यूज करता है। जैसे हम जमीन पर कोई मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो एक अपोजिट वकील होता है और एक हमारी फेवर का वकील होता है। अब खुदावंद यीशु मसीह हमारी फेवर का वकील है, शैतान जो है वो हमारी जिंदगी का अपोजिट का वकील है। वो हमेशा ही हमारे खिलाफ और हमेशा ही वो खुद मतलब हंसता है जब हम गिरते हैं, जब हम सफर करते हैं, वो हंसता है, वो इंजॉय करता है। उसकी जो इंजॉयमेंट की इंक है ना हमारी सफरिंग है, तो खुदावंद उसको भी अलाउ करता है कि वो हमें टेस्ट करे। लेकिन ये है कि इंसान को खुद भी खुदावंद ने अकल दी है कि वो खुद भी पहचाने ताकि वो उसके ट्रैप में ना आए। तो वो कहते हैं कि जबकि शैतान फिर जब वो जमीन पे हम आ जाते हैं तो फिर जो मतलब जितने खुदावन के वफादार बंदे होते हैं उन पे खुदावन की ब्लेसिंग की बाढ़ होती है। लेकिन ये है कि उन पे अगर ब्लेसिंग उनसे खुदावन मांगता है या उनको टेस्ट उनके फेथ टेस्ट करने के लिए उनसे मांगता है, कोई अल्टीमेटली गेन है। तो खुदावन क्यों चाहता है कि शैतान जो है ना हम जमीन पर आके शैतान का मुकाबला करें, हम शैतान के ऊपर ओवरकम किस तरह कर सकते हैं। यीशु मसीह ने आके हमें बताया कि हम शैतान के ऊपर किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। हम ह्यूमिलिटी से ओवरकम कर सकते हैं, हम हम्बलनेस एंड पुअर
और हर वक्त मतलब किसी दुनियावी चीजों की बजाय हम हम्बलनेस से, अगर वो हमें कोई थप्पड़ भी मारता है, ये गिराता भी है, तो फिर भी हम हम्बलनेस से उसके उठ के उसको मतलब कहें कि चल जा भाई, खुदा तेरा भला करे। ठीक है, खुदावन चाहता है कि हम इस शैतान को, खुदावन हमें बताता है यीशु मसीह, जैसे कि मैंने पहले उस दिन मतलब सरमन दिया था कि यीशु मसीह हमारा बादशाह किस तरह आ रहा है। पहली दफा वो किस तरह है, वो एक हम्बल मीक और एक मीक बनकर आया, इसी तरह। लेकिन ये था कि वो उसने अपने आप को जमीन पे गिरा लिया, वो इतना डाउन चला गया ताकि वो डाउन से ऊपर आए और ओवरकम करे। इसी तरह खुदावन भी हमें चाहता है कि हम इस चीजों मतलब शैतान पे इस तरह ओवरकम करेंगे। तो खुदावन ने हमारे लिए कलाम इसीलिए भेजा है कि हम उसको पढ़े और उसको समझे और हम उससे अक्ल हासिल करें ताकि हम उस पे ओवरकम कर सके। तो वो कहता है कि he allows evil to persist so we may fall, resist and fight with evil in order to become strong and steady in the faith throughout our lives. We actually gain a spiritual endurance in our lifetime. We have no choice other than going back to our Father. Everything has His love for us is unexplainable. In His grand plan, suffering is for our soul's well-being, and so He allows evils to persist in the world. कि वो दुनिया में शैतान को क्यों परसिस्ट होने देता है, क्योंकि वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो अलाउ करता है, हमारे मतलब फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो करता है। वो करता है कि हम और स्ट्रॉन्ग हो, जैसे थपेड़े खाएं हवा से, ताकि हम और स्ट्रेंथ हासिल करें, स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ हासिल करें, हम स्पिरिचुअली और ग्रो हो, हम मतलब इतने स्पिरिचुअली ग्रो हो हमारी स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए कि हम उसके सामने उसके खड़े होके उसकी आंखों में आंखें डाल के, चाहे वो हमें अंधे कुएं में भी डाल दे, फिर भी हम उसको कहेंगे तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास कोई ताकत नहीं है, तू बस यही कर सकता है। लेकिन जो हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो हमें तेरे हाथ में रहने नहीं देता। तो उसको कहते थे, मैं उसको अगर उर्दू में कहूँ, पंजाबी में कहूँ, तो मैं उसको कहूँगी कि जा दफा हो, तू साडा कुछ नहीं विगाड़ सकदा। साडी स्ट्रॉन्ग होल्ड जिहड़ा ना खुदावंद दे, ठीक है साडी जिंदगी च उहने रखिया होया है कि असीं थोड़ा जिहा सफर करिए, लेकिन असीं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग आ, असीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, तू नहीं साडा कुछ भी कर सकदा। जा, तू ते आसमान तो कढ़िया गया, जमीन तो भी तेनू कढ़न दा प्लान है, ते तू ते यूजलेस है। उन्हें सिर्फ यह कह दिता कि तू ते यूजलेस है, तेरे उत्ते ते अगे ही खुदावन ने कर्ज भेज दिता है, क्योंकि खुदावन ने उसको सारी जिंदगी के लिए कर्ज, क्योंकि वो कर्ज हुआ हुआ है, शैतान जो वो कर्ज हुआ हुआ है। किस चीज से कर्ज हुआ है? वो अपना बदला लेने के लिए हमें गिराता है, वो करने के लिए हमें करता है। खुदावन भी उसको अलाउ होने देता है ताकि वो देखता है कि मेरे बच्चे जो मेरे बिलीवर हैं वो मेरी तरफ आते हैं और वो कितने स्ट्रांग होते हैं। तो क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है कि खुद जो है ना वो इवल अलाउ करता है जमीन पर हमारी जिंदगी में, ताकि हम सफर करें। अब आगे क्वेश्चन ये है कि डज गॉड सफरिंग, क्या खुद सफरिंग काज करता है हमारी लाइफ में? तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं इसको उर्दू में करूंगी। इट कैन बी सेड सिंस गॉड इज द फर्स्ट काज, जबकि खुदावंद ही फर्स्ट काज है, खुदावंद ही हर चीज को बनाने वाला है, मतलब उसने ही हर इमोशन रखा है, हर चीज का क्रिएटर वही है। सिंस फर्स्ट God is creator of everything, he is responsible for the fact that the suffering exists for good outcome. खुदावन जो कि suffering मतलब वो suffering he is the first cause and he is responsible to for have, वो मतलब responsible है इस चीज का कि suffering जो है ना वो exist करे। वो क्यों कहता है कि suffering exist करे? क्योंकि हमारे good outcome के लिए, कि उसमें से मतलब वो राख में से जिंदगी पैदा करने की कोशिश करता है कि हम गिरे। आप देखते हैं कि बहुत सारी मतलब जो कमल का फूल है वो कहाँ पे गंदगी में, वो गंदगी से कितना खूबसूरत फूल निकलता है। तो खुदावंद का आउटकम ऐसे ही है कि वो हर बुरी चीज से अच्छाई निकालता है, हर
मतलब डार्कनेस से लाइट निकालता है, और हर मतलब गंद से वो मतलब अच्छी चीजें निकालता है, वो हमारे फायदे के लिए होती है और उससे उसका अच्छा आउटकम होता है। तो चला गया। Okay. He may not cause the suffering, but allows for it to happen for good reason. क्योंकि खुदावंद, और आगे ये भी है कि खुदावंद ने सफरिंग को मतलब पैदा नहीं किया होगा, लेकिन ये है कि और उसकी कोई इंटेंशन नहीं है सफरिंग काज करने की हमारी तरफ। वो हमें मारना नहीं चाहता, वो हमें लाइफ देना चाहता है, लेकिन वो अलाउ करता है कि हम उसमें से होकर गुजरे, ताकि उसकी एक अच्छी वजह है जिससे हम मतलब होकर गुजरे। क्योंकि वो एक राइचस खुदावंद है, वो सफरिंग को पैदा नहीं कर सकता, वो विलफुली सफरिंग को पैदा नहीं किया उसने हमारे लिए। उसकी ये मतलब विल नहीं है कि वो मतलब उसने सफरिंग को काज किया, लेकिन वो he let the suffering test us, you know, he give us like a he hold, you know, वो हमारे नट्स को कंट्रोल करता है, तो वो थोड़ी सी उनको स्क्रू को अनस्क्रू कर देता है, तो वो मतलब करता है ताकि वो हमारे अच्छे आउटकम के लिए हो। he is the righteous God, he will not cause the suffering for our life, but he will allow the suffering to happen into our life for our good well-being, for a good outcome, because that pleases him and he knows what is a good for us. That is why he allows the suffering in our life. He's a righteous God and will not take blame for anything that is not directly caused by him. क्योंकि इसका कहने का मैंने इसको ये कहा है कि वो राइचस खुदावंद है, वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं लेता, ठीक है, वो हर चीज को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये है कि वो डायरेक्टली जो है सफरिंग को काज उसने नहीं किया, लेकिन वो अलाउ करता है, क्योंकि जमीन अब कर्ज जो हो चुकी हुई है और जमीन पर शैतान का कब्जा, जमीन जो है वो अब शैतान की टेरिटरी है, तो जाहिर है अब हमने भी फल खा के तो अपनी मर्जी के साथ, जैसे शैतान ने कहा कि मैं अपना तख्त बनाऊंगा, तो आदम ने भी और हवा ने भी अपनी गुड विल के साथ फ्रूट खाया था कि ठीक है हम जाते हैं, लेकिन खुदावन की मर्जी ये नहीं थी हमारे लिए, तो इसलिए खुदावन ने कहा कि तुमने चॉइस कर ली है अपनी, तो ठीक है जाओ, अब तुम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे डिसोबे करने से जमीन तो अब कर्ज हो चुकी है, तो इसीलिए हम कर्ज जमीन पर रहते हैं, जिसको अब खुदावन अपने बिलीवर्स के जरिए और खुदावन अपने प्लान के मुताबिक इसको ब्लेस कर उसने मतलब कंट्रोल जो है उससे लेके, तो अब इसको वो स्लोली जो है ना वो डार्कनेस को लिफ्ट अप कर रहा है। तो वी देन क्योंकि जमीन पर जब हम आते हैं हमारे लिए सफरिंग के अलावा कुछ नहीं है, हमारे लिए हडल्स के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम हेवन में होते हैं तो ये सफरिंग चीजें उधर है नहीं है, ये सारी चीजें जमीन की हैं, तो जमीन पे जब हम आते हैं तो हमें इमोशनली इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि हाँ हम मतलब अब जमीन पर है, जिंदा है, जिंदों की जमीन पर है, खुदावंद का शुक्र है, लेकिन अब हम खुदावंद से अलहदा रहे तो हम मरेंगे, लेकिन हम खुदावंद के साथ रहे तो इस जमीन पे जितने हडल्स और जितनी तकलीफें हमारे और सफरिंग हमने सहनी है, एक किस्म की हमारी स्लीव है, इसको उठाकर हमने कील भी लगवाने अपने अंदर, और हमने मतलब सर पे कांटों का ताज भी लेना है यीशु मसीह में, और हमने कोड़े भी खाने हैं, हमने सारा कुछ बर्दाश्त करना है, सिर्फ इसलिए कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो ऊपर जाके हमारे लिए बहुत ही अच्छा मकाम होगा, क्योंकि खुदावन ये चाहता, खुदावन को पता है कि इंसान को नहीं पता, लेकिन इसीलिए खुदावन इंसान को नहीं छोड़ता, वो बार बार इंसान की तरफ आता है कि खुदावन को इस चीज का पता था कि इंसान को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होना है जमीन पर जाके, तो इसीलिए खुदावन वफादार है, खुदावन हमें नहीं छोड़ता, इसलिए वो चाहता है कि बार बार हम उसकी तरफ मुड़े, इसीलिए वो बार बार किसके लिए आता है, हमारे लिए आता है, क्यों वो लिखता है हमारे लिए आता है, क्यों वो बंदे भेजता है हमारे लिए भेजता है,
क्यों वो हमारी तनकीद करता है, हमें करता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे ये बच्चे जो है ना कमजोर है, ये खुद नहीं निकल सकेंगे, इनको मैंने ही निकालना है। तो इसीलिए सफरिंग भी जरूरी है हमारे लिए, तो खुदावन के साथ कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो हम तो हम देख सकते हैं कि जब खुदावन ही अलाउ करता है सफरिंग को, तो हमारे पास एक बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वाक्य है, उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट वाक्य है कि जब मूसा जो था वो खुदावन जो फैरो के घर से दौड़ा, उसने कत्ल किया, तो वो फैरो के घर से निकला, तो वहां पे उसको पता चल गया था कि वो हिब्रू है। तो वो जब वो दौड़ा तो मतलब उससे भागा, तो वो विल्डरनेस में गया, तो वहां जाके वो मतलब इतना विल्डरनेस में आप देखिए कि वहां पे इतने अंधेरियां आंधियां आती थी, और वो रेत की आंधियां आती थी कि वो रेत में मर रहा था, उसको पानी भी नहीं डेजर्ट में मिल रहा था। तो फिर वहां जाके उसने खुदावन को कहा कि अगर तू हिब्रू का खुदावन है, तू एग्जिस्ट करता है, तो मुझे अपना जलाल दिखा। तो अब देखिए कि खुदावन ने उसको कैसे बुलाया अपना जलाल दिखाने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि खुदावन सफरिंग को अलाउ क्यों करता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि सफरिंग वर्सेस ग्लोरी ऑफ गॉड। कि व्हेन रीड द स्टोरी ऑफ जॉब, हमने जॉब की स्टोरी को भी पढ़ा कि खुदावन जो है ना वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, खुदावन जो है ना वो अलाउ करता है। दूसरी बात यह है कि शैतान जो कर्स है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो खुदावन उसको परमिशन देता है तो तब वो करता है। जैसे कि हम जॉब की स्टोरी पढ़ सकते हैं, उसका 6 बाब 6 से 22 आए, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह शैतान कहाँ था। खुदावन की काउंसिल ऊपर, खुदावन का तख्त ऊपर लगा, उसी काउंसिल के मेंबर जो फरिश्ते हैं गए, उसमें शैतान भी गया। आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि शैतान कहाँ था, तो ऊपर करने क्या गया था, ऊपर की कन्वर्सेशन क्या थी। आप उस कन्वर्सेशन से इस चैप्टर से कन्वर्सेशन शैतान की ढूंढ लें, तो खुदावन ने फिर उसको क्या कहा कि जा तू अपना जोर लगा ले, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। अब खुदावन को उसने ये नहीं कहा था कि भी मैं उसको जाके मार दूं, उसने कहा कि हाँ तूने उसके चुगिर्द अपने ब्लेसिंग की बाड़ लगा के रखी हुई है, इसीलिए अगर तू वो हटा दे तो वो तेरी शिकायत करना शुरू कर देगा। तो खुदावन ने उसको क्या कहा, खुदावन हंसा शैतान, उसने कहा कि जा ठीक है तू जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ। तो शैतान अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो उस वक्त ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी खुदावन से डरता है, वो भी खुदावन के अंडर है, वो उसी वक्त अय्यूब की सारी चीजें तबाह बर्बाद कर सकता था। ऊपर क्या लेने गया था शैतान खुदावन की काउंसिल में? इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो शैतान की काउंसिल का मेंबर है। वो जाता है और वो जाके हर वक्त, वो कर्स हुआ है, तो एक कर्स हुआ बच्चा जिसको अटेंशन नहीं मिलती, उसको अब अटेंशन नहीं मिल रही, तो उसको अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह के वो काम करता है। उसको मैंने ये भी कहा कि शैतान को अटेंशन सीकिंग डेफिसिट सिंड्रोम है, कि इसको एक बीमारी है कि वो अटेंशन सीख करने के लिए वो मतलब हर वक्त खुदा के पास जाता है। वो वाइनी है, वो वहां जाके रोता है, क्राई करता है, वाइन करता है खुदावन के सामने कि वो बंदा जो है वो तो ये कर रहा था, वो बंदा वो हमारे खिलाफ जाके ऊपर मुकदमे फाइल करता है खुदावन की अदालत में। तब खुदावन जो है ना वो हमारी ब्लेसिंग को रोक देता है, क्योंकि खुदावन को शैतान की भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो रास्तबाज खुदावन है। तो खुदावन को उसने कहा, तो आप देख सकते हैं कि मोसेस, जब मोसेस के बारे में आप देख सकते हैं कि जब मोसेस को खुदावन ने बुलाया कि जा तो मेरी नेशन ऑफ इस्राएल को वहां से निकाल कर ला, उन्होंने मेरी ईदें मनानी, मेरे बंदे उधर 400 साल से सफर कर रहे हैं, तो उनको मैं तुझे भेजूंगा फैरो के पास। तो खुदावन ने खुद ही कहा तू जा। तो उसने मूसा ने कहा कि मैं तो एक अकेला बंदा, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपने देखा कि खुदावन ने उसको किस तरह अपना जलाल दिखाया। अपना जलाल दिखाने के लिए खुदावन ने कहा कि मैं अपने लोगों के जरिए को बचाने के लिए अपना जलाल जाहिर करूंगा, क्योंकि खुदावन ने उनको सफर करने दिया 400 साल ताकि वो अपना जलाल दिखा सके। तो उसने अपने जलाल दिखाने के लिए उसने कहा था ना कि मैं फैरो के दिल को सख्त कर दूंगा। अब कौन उसके दिल को सख्त करेगा? खुदावन ही उसके दिल को कंट्रोल करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपना जलाल दिखा सके। तो अपना जलाल दिखाने के लिए खुदावन जो है मतलब उसने कहा कि तू जा, फैरो का दिल मैं सख्त कर दूंगा। तो फिर मैं अगर वो उसका दिल इतना वो नहीं जाने देगा तो मैं फिर उस पर अपना जलाल जाहिर करूंगा, मैं उस पर आफते भेजूंगा। तो खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को भी
बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होल्ड हूँ और देखो मैं तुम्हारे मतलब अपने लोगों के लिए कितनी ग्यारह रखता हूँ, अपने बच्चों के लिए, और मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि खुदावन ने मतलब पर्पसली उसके दिल को सख्त किया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खुदावन का गजब उन पे भड़का था, क्योंकि जो विकेट होते हैं उन पे खुदावन का गजब भड़कता है। अब खुदावन ने उसके दिल को सख्त किया, फिर खुदावन ने उसके दिल को नरम भी किया, क्योंकि ये सारा कुछ खुदावन ने अपने जलाल के लिए किया, अपने जलाल दिखाने के लिए। So यही मैंने कहा कि God allows evils to persist to show his glory, strengthen our faith, and sometimes test our faith, as he always does, because खुदावन हमारा कभी हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हमें आजमा भी रहा होता है। So then he allows the suffering, but he also tests our same time to test our faith and also to show his glory during our test trial period. Such is the way he tested Father Abraham, जिस तरह से बाप इब्राहिम को आजमाया था अपने बेटे को उसकी खातिर उसके लिए कुर्बान करे। How would you explain suffering someone asking for God? अब हमारे जो जितने प्रीस्ट हैं, हमारे जो जितने भाई हैं जो खुदावंद के खादम हैं, कि जब हम ये समझें कि भी हम किसी की काउंसलिंग करना चाहते हैं, या किसी को हम किसी ब्रदर्स या सिस्टर को जो बिलीवर है, न्यू बिलीवर है, तो उसको बिल्ड अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि वो कहता है कि भी हम उनके लिए तसल्ली का बायस इसी तरह कह सकते हैं कि ज़ाहिर है हम खुदावन के खादम होते हैं, तो हमें पता है कि सब कुछ टेस्ट भी है खुदावन की तरफ से है, तो हमें खुदावन यीशु मसीह में ही उनकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको स्पिरिचुअली खुदावन की तरफ लेकर उनको उनकी स्पिरिट को लिफ्ट करना चाहिए, उनको होप देनी चाहिए कि इन द मिड्स ऑफ द सफरिंग they should understand, they should stay strong into their faith, they should look up to the Lord Jesus Christ, and they come to him, then the suffering will end, and then stay steady and stay still that he is the Lord our God who cares about us and who loves us. So we can bring up our brothers, lift up their spirit in the scripture by bringing them to Jesus Christ and telling them, look up to the Lord Jesus Christ. He's the Savior, and he took our suffering, and he will remove all this suffering from us. So, we can lift up our brothers and sisters who are down in the spirit, who are so depressed, who are so, because खुदावन जो है वो हमेशा खुदावन का दिल, हम खुदावन के दिल में रहते हैं, खुदावन का दिल हमेशा उन लोगों के लिए जो अनफॉर्चुनेट है, उन लोगों के लिए जो कमजोर है, उन लोगों के लिए जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो जो गरीब है, ये गुरबा है, उनके लिए। इसीलिए खुदावन चाहता है कि हम मतलब खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करें, खुदावन यीशु मसीह की तरफ जाए। Bring them to the Lord Jesus Christ and tell them, listen, you have the Savior. He will remove your suffering. Come to him. He will give you the peace. He will give you the rest. तो आगे वो कहता है कि why do bad things happens to the good people? अब ये कहते हैं कि खुदावन के लोगों के साथ बैड थिंग्स क्यों होती हैं। अब सफरिंग तो हमने सफरिंग के बारे में किया, लेकिन वो ये है कि खुदावन के जो लोग होते हैं उनके साथ बुरे हादसे क्यों होते हैं, क्यों हर वक्त उनके साथ बुरे हादसे होते हैं, क्यों वो बार बार गिरते हैं, क्योंकि खुदावन रासबाज को गिराता है लेकिन उसको उठाता भी है। खुदावन हर वक्त रासबाज की जो आजमाइशें हैं वो बहुत ज्यादा है खुदावन में जो चलता है। good people of God are the citizen of heaven. तो अब क्योंकि वो मतलब डार्कनेस में, वो जमीन के जो शैतान की टेरिटरी है, वो अब हेवन के बच्चे जो जमीन पर जब आते हैं, जब रोशनी डार्कनेस को लिफ्ट अप करने की कोशिश करती है, तो डार्कनेस को जाते जाते थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, वो थोड़ी देर आहिस्ता जाता है, जाके एकदम रोशनी होती है। अब रोशनी एकदम डार्कनेस में आए तो एकदम तो रोशनी ना होती, डार्कनेस जो है ना वो फिर फ्लाई करना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो खुदावन के लोग हैं, मतलब वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, they are the cities on heaven. They come onto the earth, which is the curse, which is the territory of Satan. They stepped into the Satan territory. The believer of God,
when we come onto the ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਫੁੱਲਣ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो वो कहता है कि and at the light which is the opposite of the bad, described as the evil dark. So the dark and the world and the darkness is the other name of the Satan, other name of the evil, and the world which is the other name of the Satan. मैंने पहले भी कहा कि दुनिया जो है उसका दूसरा नाम जो है शैतान है, उसका दूसरा नाम जो वर्ल्ड का दूसरा नाम जो है शैतान है, hell है। Okay, so when people try to live in the bad environment such as the world which is the place of the Satan, they will be subjected to having a bad things like take place in their life, क्योंकि हम फिर सब्जेक्ट बन जाते हैं, बैड थिंग के सब्जेक्ट बन जाते हैं कि अब हमारे ऊपर मतलब वो पत्थर फेंके, हमारे ऊपर वो थूके, हमें टेस्ट में डाले, हमारी जिंदगी को जितना वो तंग करना चाहता है वो करे। क्योंकि यही वजह है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो खुदावंद के लोग होते हैं, उनके लिए जमीन पर रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शैतान जो है उनको खुश नहीं रहने देगा जब तक कि वो उसको अपना बादशाह नहीं मानेंगे। तो वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकता ही रहेगा, वो हमारी जॉब ले लेगा, हमारी रोजी रोटी छीन लेगा, हमारे किसी बहन भाई को कुछ कर देगा, वो हर वक्त हमें तकलीफ देने की ही कोशिश में रहता है। वो नाकामयाब कोशिश जो उसकी कामयाबी होने की कोशिश वो नाकाम हो चुकी है यीशु मसीह ने। The aspect of include which we previously said, जैसे कि मैंने आपको दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि वो हमारे ईमान का भी टेस्ट हो रहा होता है, कि खुदावंद हमें टेस्ट भी कर रहा होता है ताकि हम अपने ईमान में पूरा उतरें और मजबूती के साथ रूह में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हमारी जो मतलब हमारी जो ताकत जो है उसको बढ़ाने के लिए खुदावंद जो है ना वो मतलब अच्छे लोगों को खुदावंद पे शैतान जो है ना खुदावंद भी टेस्ट करता है, और शैतान खुदावंद उसको भी कहता है कि ठीक है तू भी अपना जोर ला लै इन्हां दे उत्ते, जे ते ए मेरे होणगे ते ए मेरे नाल रहेंगे, ते जे मेरे नहीं होणगे तो आगे चल। लेकिन खुदावंद नूं पता है कि जे मेरे नाल रहेंगे ते हेवन च आणगे, ते जे शैतान वाल जाणगे ते दोज़ख च जाणगे, हमेशा दी जिंदगी तो हाथ धो लेंगे। तो हम दूसरों को किस तरह एडवाइस कर सकते हैं कि अब हम अपने जो बहन भाई हैं उनको हम किस तरह मतलब निकाल सकते हैं, हम उनको खुदावंद के बारे में बताएंगे, खुदावंद के वादों के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि खुदावंद ही एक निजात की चट्टान है, खुदावंद ही एक किला है। जैसे उस दिन मैंने कहा था कि वाटरलेस पिट, जो कि पानी के बगैर कुएं, जो डंजन जहाँ पे पानी क्या, हवा क्या, परिंद चुनिंद, कोई किसी सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधेरा ही अंधेरा, और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं होता, वहां पे किसी और चीज के पास मतलब किसी और चीज कोई एंटर नहीं हो सकती। वो जो डंजन है उसमें से हमारी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो खुदावंद है। तो हम अपने बहन भाइयों को एज ए खुदावंद के खादम होते हुए खुदावंद की तरफ लेकर आएंगे, और खुदावंद के में ही उनको कंफर्ट देंगे, और खुदावंद में ही उनको मतलब आगे बढ़ने का के लिए इनकरेज करेंगे, और उनके साथ रहेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। मोस्ट ऑफ ऑल उनको मतलब हम लीड करें खुदावंद की तरफ, कि खुदावंद ही तुम्हारी निजात की चट्टान है, जो कि यीशु मसीह है। यीशु के वसीला से वही हमारा निजात है, वही हमारी निजात की चट्टान है, वही हमारा मजबूत किला है, वही हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वही हमारी फोर्ट्रेस है, वही हमें इन चीजों से निजात देगा, वही हमें इस डार्कनेस से निकालेगा, वही हमें इन शैतान के थपेड़ों से निकालेगा, वही हमें इस परसिक्यूशन से निकालेगा, वही हमें इस बैड ट्रीटमेंट से, क्योंकि शैतान वही हमें जो भेड़ियां हमारे चुगिल हैं, जो कि शैतान जो कि धन धनाता हमारे चुगिल फिरता, हर वक्त हमें फाड़ खाने की फिक्र में रहता है, वही हमें शैतान से बचाएगा, वही हमें इन चीजों से जो दुनिया में हमारे साथ या उसके बिलीवर के साथ हो रही है, वही इन चीजों से हमें निकालने की ताकत रखता है और कोई नहीं है। इसीलिए we have to go back to our stronghold, who is the Lord Jesus Christ. Then he has the power
Now, after the resurrection, he gained the power. God has given all the power into him, his hand. He has the power in heaven. He's the heavenly king, and he is also is the earthly king. He will be the earthly king soon. He will be, because he will rule. And हर चीज उसके इख्तियार में. शैतान के पास ना तो कोई ताकत है, उससे जो ताकत उससे छीन लेगी है. अब खुदावन ने एक ही कहा था कि खुदा जैसे शैतान जिसको आप इसको एक कर्स ले लें कि खुदावन ने जो पोल पे लटका हुआ है उसको कर्स करार दिया हुआ है. तो अब खुदावन ने मूसा को, जब उसके लोग सांप से डरते थे, तो खुदावन ने मूसा को कहा कि तू एक ब्रॉन्ज स्नेक बना के तो लटका दे, तो लटकाए रख, ताकि इनकी निजात का वसीला बनेगा. यही इनको बताएगा कि मैंने, खुदावन ने बताया ये कि देखो मैंने शैतान को पूरी जिंदगी के लिए कर्स कर दिया है. ही इज द कर्स्ड वन. वो तो कर्स हुआ है, वो तो आसमान से निकल गया, उसकी तो एंट्री है ही नहीं आसमान पे. अब उसके पास तो कुछ नहीं है, वो तो उसके पर जो है वो सारे खुदावन ने उतार दिए हैं उससे. खुदावन ने उसको इतना मतलब कमजोर कर दिया है कि वो तो अब मतलब अपनी बैली पे चलता है. तो खुदावन हमें ये बताता है कि मतलब शैतान से मत डरो, इन टेस्ट से मत डरो, तुम मेरी तरफ वापस आओ तो मैं तुम्हें इन चीजों से दूर निकाल सकती. क्योंकि खुदावन ही कहता है आगे. इसकी कंक्लूजन में मैंने आखिर में मैं एक बाइबल वर्स पढ़ूंगी कि पहला पतरस उसका 5 बाब 8 से 10 आयत में वो कहता है कि खुदावन हमें क्या, वो पीटर के जरिए हमसे क्या बोल रहा है कि खुदावन का बंदा हमसे कलाम कर रहा है, कह रहा है कि बी सोबर, बी विजिलेंट बिकॉज योर एनिवर्सरी. तो वो हमें बता रहा है कि तुम मतलब हर वक्त हम्बल रहो, बी सोबर रहो, बी सोफिस्टिकेटेड रहो. एंड विजिलेंट का मतलब है कि हर वक्त होशियार रहो, क्योंकि जो शैतान है वो बेबस है. शैतान जो है हमारा दुश्मन, जो वो शैतान जो एनिवर्सरी है, शैतान जो है वो बेबस है, उसके पास ताकत नहीं है. लेकिन जब हम नहीं समझते, जब हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ नहीं आते, तो वो हमें हर वक्त डराने की कोशिश में रहता है, वो हर वक्त हमें गिराने की कोशिश में रखता है, वो हर वक्त हमारे अंदर डिप्रेशन काज करता है, वो हमें मतलब रुलाने की कोशिश में रहता है, वो हर वक्त हमारे अंदर वरी काज करता है, वो हर वक्त हमारे अंदर डर काज करता है, वो हर वक्त हमारे अंदर फियर काज करता है, वो हर वक्त हमें एंजाइटी में रखने की कोशिश करता है. जब हम एंजाइटी में होते हैं तो हम बहुत सारे बुरे काम कर देते हैं, यहाँ तक कि एंजाइटी और डिप्रेशन में हम अपनी जान भी ले लेते हैं, हम सुसाइड भी कर लेते हैं. तो शैतान का ये काम है कि वरी हरी वो हर वक्त हमें ट्रबल में रखने की कोशिश करता है. हर वक्त वो हमें इमोशनली डाउन रखने की कोशिश में रखता है. वो हर वक्त हमें अच्छी चीजें दिखा के उसका लालच देता है ताकि हम उसकी तरफ चले जाएं. वो हर वक्त जब उसके पास नहीं जाते तो फिर हमें वो वरी रखता है, वो हर वक्त हमें हमारे लिए एंजाइटी काज करता है. तो इसीलिए खुदावन कहता है कि बी विजिलेंट बिकॉज योर एनिवर्सरी इज द डेविल, जो कि शैतान है, एज अ रोरिंग लायन, जो कि एक धाड़ते शेर की तरह इधर उधर बेबस है. अब आप एक शेर को जंगले में बंद कर दे तो शेर किस तरह दौड़ता है, वो कितना, आप एक भेड़िए को जंगले में कर दे तो वो किस तरह चक्कर लगाता है, बैक एंड फोर्थ. इसी तरह शैतान भी जो है ना हर वक्त पेसिंग करता है, उसको पेसिंग कहते हैं. तो वो पेसिंग करता है बैक एंड फोर्थ, क्योंकि ही इज अबाउट टू devour somebody. Why? Because he's so anxious. Why he's pacing back and forth? It's because he's so anxious to snatch anybody, to grab anybody, to devour anybody. This is what he's pacing about. तो वो कह रहा है कि शैतान जो है ना वो roaring lion walked about seeking whom he may devour, and whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affection as accomplished in your brethren that are in the world, but the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by the Christ Jesus, after that ye suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. क्योंकि खुदावन जो है वो कहता है कि जाओ जमीन पर मेरे बच्चों, जाओ जमीन पर, लेकिन अपनी आंखें खोल कर चलो, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन जो जमीन पर है, तुम्हारा दुश्मन जो कि शैतान है, वो एक भेड़िए की तरह, एक शेर की तरह जंगले में बंद हुआ है.
तो वो उधर से उधर वो मतलब पागल हुआ है, वो पागल हो गया, सिर फिरा, वो पागल हो गया, वो पागलों की तरह बैक एंड फोर्थ भाग रहा है कि वो किसको पकड़े और किसको फाड़ खाए। वो इसी तरह मतलब पागल हुआ है। लेकिन वो कह रहा है कि अपने भाइयों को कि जो स्टेडफास्ट रहेंगे फेथ में, जो कि स्ट्रॉन्ग रहेंगे फेथ में, वही उस पे ओवरकम करेंगे। और देन नोइंग दैट द सेम afflictions are accomplished in your brethren are not in the world. तो वो जो मतलब दूसरे जो हमारे brethren हैं, it's the same affliction, we have to lift them up, but the God of our grace, we have to remind that the God of our grace, who contain all the grace, who contain all the power, who's our rock, and who has called us into eternal glory in the Lord Jesus Christ, because through the Lord Jesus Christ, he called us for his eternal glory, that we still have to suffer like the Christ did and like onto the earth, because we are into the Satan territory. But we have to be vigilant and we have to trust onto our Lord Jesus Christ. After you have suffered a while, जबकि तुम थोड़ी सी उसके नाम में suffering ले लेते हो, तो तुम अपनी मतलब faith में stable हो जाते हो, steady हो जाते हो, and then make you perfect, because खुदावंद हमें perfect करने के लिए मतलब वो इन चीजों को allow करता है, and then he establishes strength and settle you, because then वो हमें इतना strong कर देता है अपने faith में कि हम खड़े हो जाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, आ तू हमें आजमा। लेकिन जिसके जरिए से खुदावंद जो कि ग्लोरी का बादशाह है, हम उसके जरिए ही फतहमंद होते हैं, और उसी के जरिए हम ताकत पाते हैं, और उसी के जरिए हमें हिम्मत मिलती है, और उसी के जरिए हम हर परसिक्यूशन से निकल सकते हैं, और हर वो दीवार, हर वो प्रिजन वॉल, हर वो चेंज है, वो उसी के नाम से टूटती हैं। तो हमें उसी में आना चाहिए। तो खुदावंद जो है वो हमारी जिंदगी में सफरिंग को अलाउ करता है ताकि वो अपनी ग्लोरी को शो कर सके, ताकि वो अपने जलाल को जाहिर कर सके। तो सफरिंग वर्सेस गॉड्स ग्लोरी, दिस इज व्हाट द बिलीवर हैज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमें इस चीज को सोच लेना, हमें पॉजिटिव माइंड रखते हुए इस चीज को सोच लेना चाहिए कि अब हम जमीन पर हैं, तो अब हम खुदावंद के बच्चे हैं, हम जमीनी नहीं रहे, हम आसमानी हैं। लेकिन जाहिर है कि जब हम जमीन पे शैतान की टेरिटरी में, हमारे ऊपर टेस्ट भी होंगे, हमें बहुत सारी सफरिंग में से होकर गुजरना है, इसीलिए ताकि हम खुदावंद का जलाल हम में से जाहिर हो सके। तो यही आज का कलाम था कि बिलीवर को जमीन पर सफर क्यों करना पड़ता है, या फेथफुल पीपल, क्योंकि हम ये ना सोचे कि ये हमारी ही सफरिंग थी। हम आप देख सकते हैं कि नेशन ऑफ इस्राइल फ्रॉम द कितनी सफरिंग से वो खुदावंद के लोग जो है ना वो हो रहे हैं। तो मैं इस जिंदा कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे मौका बख्शा कि मैं उसके लोगों के लिए मैं इस चीज को बयान कर सकूं। और खुदावंद मैं इसमें खुद भी मजबूत रहना चाहती हूँ खुदावंद कि तू हमें हिम्मत, ताकत और तवानाई देते कि तू ही हमारी चट्टान है। और आए खुदावंद हमारी जिंदगी से हमेशा तेरा जलाल जाहिर होता रहा है खुदावंद, क्योंकि तू हमारी हर सफरिंग हमारी भलाई के लिए करता है, अच्छे आउटकम के लिए करता है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे मौका के लिए, इस अच्छे कलाम के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे फिक्र के लिए, तेरे फजल के लिए, और मोस्ट ऑफ ऑल मसीह यीशु के लिए कि जिसको तूने आए खुदावंद हमारे लिए भेजा ताकि वो हमें हमारे लिए सफर करे, ताकि तू हम जो तेरे दिल में रखते हैं हम हमेशा तेरे पास रह सके, और हर वक्त हम तेरी तरफ आए खुदावंद, अपने हाथ तेरी तरफ उठाए, क्योंकि तू ही हमारी चट्टान है, मजबूत कला है, मजबूत चट्टान है, और तू ही आए खुदावंद हमें इन सारी सफरिंग से निकालता है ताकि हम मतलब अपनी जिंदगी में और ज्यादा ब्लेस हों और ब्लेस रहें, और आए खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते रहे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। इन सब कहेंगे आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज गॉड। अभी हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेंगे ताकि हम अपनी उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ कर सकें। तो
चलें फिर हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं। तो फॉर रशीद भाई सारी प्रेयर रिक्वेस्ट, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें। जितने हमारे अजीज और रिश्तेदार या हमारे पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, एक मुस्लिम फैमिली है, उन्होंने दुआ के लिए रिक्वेस्ट दी है, उनका नाम बदल है, उनके लिए भी दुआ की जाए। अच्छा, तो रशीद भाई आप सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें। कि तू अपनी कुदरत को यीशु नाम से जारी और सारी करना, और आसमानी खुदा जितने भी बीमार, जितने भी कमजोर और जितने भी लोग परेशानी की हालत में हैं, उनकी दवाइयाँ दरख्वास्तें आसमानी खुदा तेरे पाक मसबा पर मौजूद हैं, आई हैं। आसमानी खुदा मैं तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से सारी दरख्वास्तों को तेरी हुजूरी में लाता हूँ, और आसमानी खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तमाम दरखास्तों पर अपनी कुदरत को जारी सारी करना। आसमानी खुदा जितनी भी जिंदगियां आसमानी खुदा कमजोरी की हालत में है, परेशानी की हालत में है, आसमानी खुदा तो अपनी कुदरत को उन तमाम जिंदगियों पर कसरत से जारी सारी करना। आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा, तेरी बेटी के लिए, बैन नुसरत भट्टी के लिए, जिसने आज शाम तेरे कलाम को बयान किया है। आसमानी खुदा अपनी बंदी पर अपने कलाम के गहरे भेदों को यीशु मसीह के नाम से इसी तरह जारी सारी करना, ताकि आसमानी खुदा तेरी बेटी कौमों, कबीलों, उम्मतों में जाकर अंजील की मुनादी करे और बहुत सारी भटकी हुई रूहों को तेरी हुजूरी में लाने का वसीला और सबब ठहरे। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम खादमीन के लिए, बैन नसरीन के लिए और होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए, तमाम खादमीन के लिए, तमाम वर्शिपर्स के लिए, तमाम बेटियों के लिए, तमाम बेटों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आसमानी खुदा। और बिलखुसूस तेरे खादमंदा पास्टर जो हमारे लाहौर के हैं आसमानी खुदा, उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर सदीक के लिए यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा कि तूने अपने बंदा को अपनी कुदरत से भरा, अपने जलाल से भरा, और आसमानी खुदा वो एक बार फिर से तेरे इस खेत में आसमानी खुदा मजदूरी करने को है, काम करने को है। आसमानी खुदा अपने बंदा की खिदमत की हदों को और ज्यादा वसी कीजिए आसमानी खुदा, यबीस की तरह आसमानी खुदा तमाम खादमीन की हदों को यीशु नाम से बढ़ाइए। पास्टर फयाज के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, और बाकी तमाम पास्टरों के लिए, भाई रवि के लिए, भाई फोबिल के लिए, और तमाम उन बहनों के लिए आसमानी खुदा जो तेरी हुजूरी में खिदमत के काम सर अंजाम देती हैं। बहन मारिया के लिए, बेटी मुस्कान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बेटी यूनिका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, पास्टर इरफान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी खुदा कि तू आ इन तमाम जिंदगियों पर अपने पाक रूह को जारी सारी करना। आसमानी खुदा ये तमाम जिंदगियां घटती चली जाएं और तू बढ़ता चला जाए। आसमानी खुदा अपने आप को तेरी हुजूरी में लाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आसमानी खुदा अपने कलाम के भेदों से बढ़, अपनी सच्चाइयों से बढ़, ताकि आसमानी खुदा अंजील की वुसअत और मुनादी के लिए आसमानी खुदा मैं भी अपने आप को दिन रात खर्च और इस्तेमाल करूं, और बहुत सारी जानों को तेरी हुजूरी में लाने का वसीला और सबब ठहरूं। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। और हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जमीन पर भी हो। रोज की रोटी आज
اور جس سے ہم اپنے قرض کو معاف کرتے ہیں معاف کرتے ہیں تو تو بھی بھی ہمارے قرض میں معاف کر میں میں آزمائش میں نہ پڑنے بلکہ برائی سے بچا برائے سے بچا کہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ جلال تیرے ہی ہمیشہ ہیں آمین تیرے ہی ہے آمین آمین ہمیشہ تیرے آمین تیری آمین اب بھائی کلام برکات عطا کرے اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے ہمیشہ تک تمام مقدسین کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، شہر یروشلم کے ساتھ اور ہولی سینچری منسٹری کے ساتھ ابدل آباد قائم اور دائم رہے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ عبادت ہو چکی، خدا کی سلامتی آپ سب آمین پر قائم آمین اور دائم رہے۔ خداوند خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ Amen. May His love, mercy, grace, peace be with us all. In the name of Jesus. Amen.